Yes, now let's start with question number 51. If x plus y is equal to k is normal to the parabola, y square is equal to 12x, then it touches the parabola. मतलब ये बताना है कि लाइन इस जो पैराबोला है आपका उसके नॉर्मल है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट कि दिस पर्टिकुलर लाइन, ये जो लाइन है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग this parabola it becomes a tangent. So line is y is equal to minus x plus k. पैराबोला है आपके पास y square is equal to 4 into 3x. 12x है ना, 4 into 3x. So it is normal. नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? नॉर्मल इज y is equal to mx minus am cube minus 2am. Okay जी. So this line is normal. It is normal if k is equal to c is equal to, मतलब ये सारे की सारी चीज c बन जाएगी. c is equal to माइनस am क्यूब माइनस 2am. k की वैल्यू निकालनी है ना पहले हमको, k निकालेंगे तभी हम टेंजेंट जज कर पाएंगे. So k is equal to minus 3 into m is minus 1 whole cube minus 2 into a is 3 minus 1. So k comes out to be 3 plus 6. So this comes out to be 9, right? So the line is y is equal to minus x plus 9. ठीक है जी, ये लाइन आ गई. It is tangent, मतलब ये टेंजेंट बन जाएगी. Let us check for the first parabola. Y square is equal to, it is tangent to y square is equal to 4 into minus 9x if क्या होता है, c is equal to a upon m. c है हमारे पास 9 is equal to a है हमारे पास minus 9, m is minus 1. So it is okay. So it is tangent to the first parabola. Let us check for second. Again the second parabola is y square is equal to 4 into minus 3x. So this is c is 9 is equal to a is what, minus 3 upon a is m is minus 1. No, rejected. Similarly you can reject the third option also. Okay, so a option is the answer. A option is the answer. I am explaining it once again. The line was y is equal to minus x plus k. Y is equal to 12x हमारा पैराबोला था, तो उसको हमने कर दिया 4 into 3x a में कन्वर्ट कर दिया. This line is normal if k is equal to minus am cube minus 2am, क्योंकि जो जनरल नॉर्मल की इक्वेशन है that is y is equal to mx minus am cube minus 2am. So this is k is equal to a और m की वैल्यू रिप्लेस करो. a की वैल्यू क्या है 3, m is minus 1, so k comes out to be 9. So the line becomes y is equal to minus x plus 9. Okay जी. Now it is tangent to the parabola. Tangent के लिए क्या कंडीशन लगाएंगे हम लोग, c is equal to a upon m. So c is equal to a upon m. So 9 become 9 in the first case. So it is. बाकियों के लिए आप चेक कर सकते हो if it has more than one answer. Okay. So a is the answer. Next question now. (52nd) 52nd is m is the foot of perpendicular from P on the parabola y square is equal to 8. पैराबोला है हमारे पास y is equal to 8, 4 into 2, उसको जनरल फॉर्म में लिखना चाहिए x minus 3. ओके जी. अगर थोड़ा सा रफ स्केच करूं, इट इज लाइक दिस. वर्टेक्स है उसका 3 0 1 2 3 3 0, राइट जी. फोकस है उसका a0 मीन्स 2 0, राइट. कैपिटल एक्स इज इक्वल टू दिस, सो ओरिजिनल फोकस क्या बन जाएगा, फोकस इज 5, x minus 3 is equal to 2, 5, 5 and 0. Okay जी, 5 0. So 3 4 5 5 0 is the focus. ये आपका बन जाएगा पैराबोला.
डायरेक्ट्रिक्स के लिए इक्वल लेंथ होती है, ये बन जाएगा उसका डायरेक्ट्रिक्स, राइट। x प्लस x माइन x इज इक्वल टू 1, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, ये लाइन उसका डायरेक्ट्रिक्स बन जाएगी। नाउ व्हाट ही सेज, m is the foot of perpendicular from P on the parabola, कोई पॉइंट लो पैराबोला के ऊपर, से दिस इज P, m is the foot of perpendicular, right, m is the foot of perpendicular from P on the parabola to its directrix and s is the focus, s वो फोकस को नाम दे रहा है, राइट जी। if SPM is a SPM is an equilateral triangle, ये कहते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल है, तो उसकी कोई एक साइड बताइए आप कितनी आ रही है, राइट। SPM इज एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये आपका इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, देन ही सेज उसकी कोई एक साइड बताओ क्या आ रही है। तो अगर ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो ये एंगल 60 का हो जाएगा, ठीक है जी, ये एंगल 60 का हो गया, तो ये एंगल हो जाएगा आपका 30 का। ये लेंथ हमें पता है, राइट, ये लेंथ लगा करके हम लोग ये निकाल सकते हैं यूजिंग सिंपल ट्रिग्नोमेट्री। सो लेट अस टेक इट इन ट्रायंगल एस एम, इसको एन का नाम दे रहा हूं मैं, एस एम एन साइन 30 इज इक्वल टू साइन 30, ये परपेंडिकुलर बन जाएगा एस एन अपॉन एस एम, साइन 30 इज हाफ एस एन इज हाउ मच 4 यूनिट्स, एस एम हमें निकालना है, वो उसकी साइड है, सो एस एम बिकम्स 8, ओके जी, so side is should be 8, this should be the answer I think, yes D is the answer। मैं दोबारा एक्सप्लेन कर रहा हूं क्वेश्चन को, m is the foot of perpendicular from P on the parabola y square is equal to 8 into x minus 3, m is the foot of perpendicular, पहले थोड़ा रफ स्केच करो पैराबोला का, राइट, टेकिंग इट्स वर्टेक्स 30 वर्टेक्स है उसका, उसी में ट्रांसलेट करके फोकस निकाला है मैंने, यहां से 20 आ रहा है, देन x माइनस 3 इज इक्वल टू 2, सो 50, y में तो कोई चेंज है ही नहीं, सो दिस वर्टेक्स ये है, फोकस ये है, पैराबोला इधर को खुलेगा एट इक्वल डिस्टेंस डायरेक्ट्रिक्स बनेगा। अदरवाइज आप निकाल सकते हो x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, उस कैपिटल x को आप लो x माइनस 3, देन x प्लस 1, x इज इक्वल टू 1 इज द डायरेक्ट्रिक्स उसका बन जाएगा, राइट जी। ये डायरेक्ट्रिक्स बने, यहां से लेकर के यहां तक डिस्टेंस कितना आ रहा है उसका 4, ये वो बना रहा है इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये एंगल पूरा जो है परपेंडिकुलर दे रहा है वो 90 हो जाएगा, तो ये एंगल 60 है तो ये 30 बचा, तो इस ट्रायंगल में सिंपल टी रेशो लगा करके हमने ये लेंथ निकाल दी ms, सो एस ms comes out to be 8, so each side of the equilateral triangle is 8 units। next question now, 53rd, is if the normal to the parabola y square is equal to 4ax at the ends of latest rectum meets the parabola again at the point P and Q, then equation of PQ is, okay जी। if the normal at the y square is equal to 4ax, ये पैराबोला, राइट जी, ये हुए एंड ऑफ लेटस रेक्टम, थोड़ा पिक्टोरियल क्वेश्चन एक्सप्लेन करते हैं, दिस इज फोकस एफ, दिस इज द लेटस रेक्टम, तो ये पॉइंट क्या बन जाएगा इसका a 2a, ये बन जाएगा a माइनस 2a, वो कहता है जी इनके ऊपर हम लोगों ने नॉर्मल ड्रॉ किए हैं, we drawn the normal there, it meets at point P, it meets at point Q, then you have to find the equation of PQ, okay जी, this is the question। if the normal to the parabola y square is equal to 4ax at the ends of latest rectum meet the parabola again at नॉर्मल P पे मिल रहा है, नॉर्मल Q पे मिल रहा है, then the equation of PQ is, right, तो पहले तो मैं इसकी इक्वेशन निकाल दूंगा नॉर्मल की यहाँ पे, फिर इक्वेशन की नॉर्मल निकाल दूंगा इसके ऊपर, ओके जी, देन आई विल फाइंड आउट दीज पॉइंट्स, ये दोनों पॉइंट्स पैराबोला के साथ सॉल्व करके, राइट, फिर इक्वेशन बनाएंगे, आम जनरल मेथड है, नो शॉर्टकट। सो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल इज मैंने इन द बिगिनिंग बताई थी आप लोगों को, y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a
x माइनस x1, ओके जी, विच बिकम्स y माइनस, पॉइंट ले रहा हूं a टू a, सो y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस 2a अपॉन माइनस 1 रह जाएगा सिर्फ x माइनस a, ओके, सो y माइनस 2a इज इक्वल टू माइनस x प्लस a, so that is x plus y minus 3a is equal to 0, ये बन गया आपका एक नॉर्मल, ठीक है जी। द अदर नॉर्मल के लिए हम लोग यहाँ प्लस 2a लगाएंगे, अदर नॉर्मल इज y plus 2a is equal to, अदर नॉर्मल इज y plus 2a is equal to, यहाँ माइनस 2a लगाऊं तो 1 रह जाएगा, इज इक्वल टू x माइनस a, सो इट कम्स आउट टू बी x माइनस y माइनस 3a इज इक्वल टू 0, ओके जी। सो दिस, ये जो नॉर्मल है ये मिलता है जाकर के Q के ऊपर, ये मिलता है P के ऊपर, सो फॉर P सॉल्विंग x प्लस y माइनस 3a इज इक्वल टू 0 एंड y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, तो y की वैल्यू क्या आ रही है यहां से 3a माइनस x, सो दिस इज 3a माइनस x whole square is equal to 4ax, this comes out to be 9a square plus x square minus 6ax is equal to 4ax, which is x square minus 10ax plus 9a square is equal to 0, x square minus 9ax minus ax plus 9a square is equal to 0, x into x minus 9a minus a into x minus 9a is equal to 0, so it becomes a तो यही पॉइंट आ जाएगा a to a, इसको तो रिजेक्ट करो, द अदर पॉइंट इज 9a राइट जी, 9a इसमें रिप्लेस करूं, x की जगह 9a रिप्लेस करूं तो y क्या आ रहा है आपके पास माइनस 6 है, 9a माइनस 3 है 6 है, तो y इज इक्वल टू माइनस 6 है, ठीक है जी। दिस पॉइंट इज P फॉर Q, ये जो वैल्यू आपके पास आई हुई है y इज इक्वल टू x माइनस 3 है, इसको पैराबोला में रिप्लेस करो, x माइनस 3 है, y इज इक्वल टू x माइनस 3 है, वो सेम ही आ जाएगी आपके पास, राइट जी, सो दैट कम्स आउट टू बी 9 एंड माइनस 6 है, सेम 9 है, सेम ही आ जाएगा 9 है, सो Q इज द फॉर Q नहीं सिमिलरली Q कम्स आउट टू बी 9a, इसमें 9a रिप्लेस करूं x की जगह पे, 9a माइनस 3 है 6 है 9a माइनस y माइनस 3 है, 9a माइनस 6 है माइनस y, सो इट कम्स आउट टू बी माइनस y इज इक्वल टू 6 है, ओके जी, सो Q कम्स आउट टू बी 9a एंड 6 है। अब इक्वेशन बना लो उसकी, सो इक्वेशन इज y माइनस y1, ये पॉइंट ले रहा हूं, प्लस 6 है इज इक्वल टू, इस जगह के ऊपर स्लोप रखो आप, 6 है y2 माइनस अपॉन 0, तो 0 आ रही है, सो समथिंग अपॉन 0 मतलब 12 अपॉन 0, नो नीड टू वरी के हाँ ऐसे आ रहा है वैसे आ रहा है, x माइनस 9 है, ओके जी, इनफाइनाइट है तो वी कैन यूज इट लाइक दिस, आई हैव यूज्ड इन स्ट्रेट लाइन सो मेनी टाइम्स, सो दिस बिकम्स 0, this whole becomes 0, means x is equal to 9, this should be the answer. Let us check. Yes, x is equal to 9, D is the answer, right? I am explaining once again what it says in the question. If the normal to the parabola y square is equal to 4ax at the end of latest rectum meet the parabola again at the point P and Q, then equation of PQ is, एक पैराबोला आपको दे दिया गया था, उसके एंड ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के ऊपर उसने दो नॉर्मल ड्रॉ किए, वन इज दिस अनदर इज दिस, दे मीट द पैराबोला एट पॉइंट P एंड Q, फिर वो कह रहा है जी PQ की आप इक्वेशन निकालिए, व्हाट आई डिड, मैंने दोनों नॉर्मल निकाले, यूजिंग दिस रिजल्ट y माइनस y1 इज इक्वल टू माइनस y1 अपॉन 2a x माइनस x1, एक नॉर्मल आया ये, दूसरा नॉर्मल आया ये, ओके जी, एक पॉइंट निकालने के लिए P निकालने के लिए इस इक्वेशन को और इसको नॉर्मल को सॉल्व करेंगे, आपके पास पॉइंट आ गया 9a माइनस 6 है, ठीक है जी। दूसरे के लिए भी मैं y इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 ही पुट करूंगा, यहाँ पे इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम बनेगी, तो वो आ जाएगा 9a, राइट जी, 9a की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करोगे, यू विल गेट 6 है, दो पॉइंट आ गए हमारे पास,
स्लोप निकालिए उनकी 6 से प्लस 6 से 12 है अपॉन 0. ओके जी, दैट मीन्स द लाइन विल बी इनफाइनाइट, लाइन विल बी पैरेलल टू y axis, x is equal to something, so y plus 6 is equal to 12 upon this x minus 9 है, ये लाइन आपकी बच जाएगी. So this is the way. Next question now, 54th. is the normal chord of the parabola y square is equal to 4x at a point whose ordinate equals to the abscissa. Good. Subtends a right angle at the, किस पॉइंट के ऊपर वो राइट एंगल फॉर्म करता है, राइट जी. हाँ, पैराबोला लो, y square is equal to 4ax, then the normal chord of the parabola y square is equal to 4x at a point whose ordinate equals abscissa. Ordinate equals abscissa means 80 square is equal to 280, यही हम लोग लेकर के चलते हैं. ये बराबर आ गया जी उसका, a एंड a कैंसल आउट, इसका मतलब है t स्क्वायर इज इक्वल टू 2t. एक तो t आ गया 0 जहां बराबर रहता है, दूसरा आ गया 2. ओके जी, जहां ऑर्डिनेट इक्वल टू एब्सिसा आ गया आपका. सो द पॉइंट इज 2 2, पॉइंट कम्स आउट टू बी इस केस में 4a और 4a, ये आ गया जी पॉइंट. आप वो कहता है इफ द नॉर्मल कॉर्ड ऑफ द पैराबोला हुज ऑर्डिनेट इक्वल्स दिस सबटेंड्स ए राइट एंगल, सबटेंड्स ए राइट एंगल एट द, हमें जज करना है कि वो पॉइंट क्या है. ठीक है, दूसरा पॉइंट हमारा क्या आने वाला है, दूसरा पॉइंट क्या होता है, t इज इक्वल टू इफ द नॉर्मल एट वन पॉइंट मीट्स अनदर एट अनदर पॉइंट, ये प्रॉपर्टी है हमारे पास दैट t इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी. सो t इज इक्वल टू अनदर पॉइंट के लिए t इज इक्वल टू माइनस t, हमारे पास आ गया 2 माइनस 2 अपॉन 2 कैंसल्ड आउट. सो दिस कम्स आउट टू बी t इज इक्वल टू 2 आया हुआ, 2 की वैल्यू में रिप्लेस करो, माइनस 2 अपॉन 2, दिस इज माइनस 3. सो द पॉइंट कम्स आउट टू बी अनदर पॉइंट इज, जहां वो जाकर के मिलेगा माइनस 3 यहाँ रिप्लेस करो, 80 स्क्वायर 9 है माइनस 6 है. ओके जी, 9 है और माइनस 6 है. अब ये आपके पास आ गया दिस वे, मतलब कहीं एक हमने नॉर्मल ड्रॉ किया इस तरीके से. वो कहता है जहां एब्सिसा आ रही है वो कहता है किस पॉइंट के ऊपर वो 90 डिग्री बनाता है पैराबोला, वर्टेक्स के ऊपर के कहां. अब वर्टेक्स के ऊपर अगर मैं चेक करूं तो 4a माइनस 6 से माइनस 1 नहीं आ रहा उसका. ठीक है, तो सेकंड थिंग फोकस के लिए चेक करते हैं. फोकस है आपके पास a और 0, सो माइनस 6 से माइनस 0 y2 माइनस 5 अपॉन 9a माइनस a स्लोप निकालो इनटू 4a माइनस 0 अपॉन 4a माइनस a, दैट कम्स आउट टू बी माइनस 7a. ओके, माइनस 6 से माइनस 0 माइनस 6 है अपॉन 8a into 4a upon 3a, right? So this is, yes, cancelled out, 3 to the 6, 4 to the 8, minus 1. So it makes a right angle at the focus, makes a right angle at focus. So the answer is A is the answer. I am explaining again the normal chord of the parabola y square is equal to 4ax at a point whose ordinate equal abscissa. ऑर्डिनेट और एब्सिसा इक्वल हो गया. हम कोई भी पैरामेट्रिक पॉइंट लेकर के चलते हैं, 80 स्क्वायर एंड 280. ओके जी, फॉर द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x, हमने लिया 80 स्क्वायर 280, एब्सिसा इज इक्वल टू ऑर्डिनेट, सो t स्क्वायर इज इक्वल टू 280. एक पॉइंट आ गया 0 0, दूसरा t इज इक्वल टू 2, 0 रिजेक्ट कर दिया मैंने, 2 लो आप लोग, क्योंकि वो तो वर्टेक्स का बनेगा, उसके ऊपर जो है नॉर्मल, दिस इज नॉर्मल. सो अनदर द पॉइंट कम्स आउट टू 4a. हमारे पास ये प्रॉपर्टी है, वी हैव द प्रॉपर्टी कि इफ नॉर्मल एट वन पॉइंट t के ऊपर,
it meets the parabola again at a point, then जो दूसरा point है that comes out to be t is equal to minus t minus 2 upon t. Okay जी, so t is equal to minus 2 upon t, that is minus 3 है, right? So point उस minus 3 को यहाँ put करेंगे पैरामीटर्स में, point आ जाएगा आपका 9 है और minus 6 है, दोनों पॉइंट्स आ गए हैं, मतलब लाइक दिस, ये कॉर्ड आ गई हमारे पास। अब ये कॉर्ड 90 डिग्री कहां बनाती है, वर्टेक्स के ऊपर के इसके ऊपर, फोकस के ऊपर, वर्टेक्स के ऊपर क्लियरली दिख रहा है कि नहीं बनाएगी, क्योंकि वो 0 0 माइनस 6 है, माइनस 0.9 है, माइनस 0 इंटू 4 है, माइनस 0, वो माइनस 1 नहीं बनेगा, सो रिजेक्टेड। फोकस के लिए मैंने चेक किया, दैट फॉलोज द कंडीशन, यानी कि दोनों की स्लोप्स को मल्टीप्लाई करके माइनस 1 आ गया, सो दैट्स द रिजल्ट के फोकस के ऊपर बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ 55। $55 is the normal chord at a point t on the parabola y square is equal to 4ax subtends a right angle at the vertex. vertex के ऊपर वो right angle subtend करता है, पहले फोकस के ऊपर था, अब वो कह रहे थे कि नॉर्मल कॉर्ड है जो कि उसके ऊपर करता है। फिर वो कहता है t की वैल्यू क्या होनी चाहिए हमारे पास, t स्क्वायर इज इक्वल टू, मतलब दिस वे at स्क्वायर 2at, ओके जी, मतलब इट सबटेंड्स ए राइट एंगल हियर दिस वे। अब अगर इसमें वो पीछे वाला लगाता हूँ माइनस टी, मतलब टी इज इक्वल टू माइनस टी माइनस 2 अपॉन टी, इट बिकम्स क्वाइट टीडियस, ठीक है, तो वो नहीं मैं अडॉप्ट करूंगा। व्हाट आई विल डू कि इक्वेशन ऑफ नॉर्मल बना लेते हैं, नॉर्मल एट पी, पी नाम दो उसको, पी इज वाई इज इक्वल टू, ये मैंने लिखाई थी y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस at क्यूब, मतलब स्लोप की फॉर्म में अलग हो जाती है, पैरामीटर की फॉर्म में अलग हो जाती है। नाउ व्हाट आई विल डू विद दिस पैराबोला, ओके, एंड दिस आई विल मेक ए होमोजेनियस इक्वेशन। रिकॉल द सिस्टम कि अगर हमारे पास कोई इस तरीके से कर्व होता है, इफ वी हैव ए कर्व दिस वे, स्ट्रेट लाइन में थोड़ा सा आइडिया दिया था हमने कि ये उसको कट कर रही है, तो हम लोग होमोजेनियस इक्वेशन बना सकते हैं इन दोनों के साथ में विद द हेल्प ऑफ कर्व एंड दिस लाइन। ओके, कर्व जैसे आपके पास हो ए एक्स स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस सी इज इक्वल टू 0 या समथिंग एल्स इज इक्वल टू 0। लाइन की इक्वेशन है आपके पास ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0, तो यहाँ सी की वैल्यू निकाल करके माइनस ए माइनस बी उसका स्क्वायर करके यहाँ पुट करके हम होमोजेनियस बना सकते हैं। फिर होमोजेनियस इक्वेशन वो जो आएगी दैट रिप्रेजेंट दीज टू लाइंस, तो यहाँ होमोजेनियस जाएगी दैट रिप्रेजेंट दीज टू डॉटेड लाइंस। ओके जी, तो उससे मैं ये जज कर लूंगा कि ये एंगल 90 डिग्री बनेगा तो क्या होगा। यस, लेट अस डू इट। So let us make homogeneous with parabola। ओके जी, पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, y स्क्वायर है तो सेकंड डिग्री में होमोजेनियस बनेगी। इसका मतलब यहाँ पे मैं x इंटू, मतलब जो x की वैल्यू आने वाली है यहाँ पे वो रिप्लेस कर देते हैं हम लोग, सो दैट कम्स आउट टू बी y स्क्वायर इज इक्वल टू x, x के आने वाला है यहाँ पे, मतलब x की टर्म में सारी की सारी वैल्यू यहाँ रिप्लेस कर देते हैं, मींस y प्लस टी एक्स अपॉन 2at प्लस at क्यूब इज इक्वल टू 1, यही बचेगा ना। इसको ऐसे लिखें y प्लस टी एक्स अपॉन 2at प्लस at स्क्वायर, मतलब दिस है होल कम्स हियर इज इक्वल टू 1 बच गया। तो अगर मैं यहाँ 1 से मल्टीप्लाई कर दूं तो फिर x y से मल्टीप्लाई होगा, x x से मल्टीप्लाई होगा, दैट विल गिव यू द होमोजेनियस इक्वेशन। सो दिस इज 4a x as it is into y plus tx upon 2at plus at cube। ओके जी, हो गई होमोजेनियस। y स्क्वायर का ऑप्शन क्या आने वाला, y स्क्वायर इंटू 2at प्लस at क्यूब इज इक्वल टू 4axy प्लस 4at into x square, राइट जी, दिस इज द इक्वेशन। नाउ आई थिंक यू
रिमेंबर दिस थिंग दैट ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये जो होमोजेनियस इक्वेशन बनती थी, this form the right angle triangle if a plus b is equal to 0, right? It forms a right angle triangle, इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री हो जाता था अगर a प्लस बी इज इक्वल टू 0 हो जाए। तो यहां पर a प्लस बी क्या है हमारे पास, इसको उधर लेकर के आऊं तो माइनस हो जाएगा। इट सबटेंड्स राइट एंगल इफ 2at प्लस at क्यूब, वो इधर आएगा माइनस होगा, माइनस 4at इज इक्वल टू 0, यानी कि at क्यूब माइनस 2at इज इक्वल टू 0। सो a कैंसिल करो थ्रू आउट, यू आर लेफ्ट विद t into t square minus 2 is equal to 0, t is equal to 0, t square is equal to 2. So t square should be equal to 2. This should be the answer. Yes, B is the answer. ठीक है जी, what I did, एक पॉइंट के ऊपर what he says कि जी कोई भी एक नॉर्मल कॉर्ड है, that normal chord subtends a right angle at the vertex, तो t square की वैल्यू क्या आएगी या t is equal to क्या आएगी, ये पूछ सकते हैं वो, राइट मैंने क्या किया, इस पॉइंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल ड्रॉ कर दी, y प्लस टी एक्स इज इक्वल टू 2at प्लस at स्क्वायर, क्योंकि at क्यू, क्योंकि t में वो इक्वेशन मांग रहा है, t में वो रिजल्ट मांग रहा है, तो मेरे को t में ही लेकर के चलना पड़ेगा। नाउ व्हाट आई डिड, मैंने इस इक्वेशन और इस इक्वेशन की हेल्प से होमोजेनियस इक्वेशन बना दी। दिस वी डिड इन द लास्ट टॉपिक ऑफ स्ट्रेट लाइन, कि जी अगर आपके पास इस तरीके से कोई कर्व है, ये उसको लाइन कट करके जाती है, तो हम लोग होमोजेनियस बना सकते हैं बाय रिप्लेसिंग x के साथ में इस टर्म की एक्स वाई की टर्म जो कांस्टेंट होगी वहां पे उसको स्केयर करके होमोजेनियस बना देते हैं। सो मैंने वही ट्रिक लगाया, यहाँ पे होमोजेनियस बना दिया, y प्लस टी एक्स होल अपॉन दिस इज इक्वल टू 1 बच जाएगा। सो 1 की वैल्यू यहाँ रिप्लेस करो, यू विल गेट होमोजेनियस। नाउ ए होमोजेनियस इक्वेशन इन सेकंड डिग्री व्हिच इज द इक्वेशन ऑफ पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन दैट सबटेंड्स अ राइट एंगल इफ a प्लस b इज इक्वल टू 0, वो कंडीशन लगाई, यू गॉट द रिजल्ट t स्क्वायर इज इक्वल टू 2। ओके, now next question, 56th. Yes, the subtangent, ordinate and subnormal. 56th question में आपके subtangent, ordinate, subtangent, ordinate, subnormal of y square is equal to 4ax. Okay, सबसे पहले तो ये चीज देखो बच्चे, ये सबटेंजेंट, ऑर्डिनेट, सब नॉर्मल ये होते क्या है। से दिस इज योर्स एनी कर्व, नॉट नेसेसरली पैराबोला, दिस इज अ कर्व, इसके किसी एक पॉइंट के ऊपर हम लोग टेंजेंट बना देते हैं। से दिस इज P, दिस PM इज कॉल्ड, PM इज लेंथ ऑफ टेंजेंट, इसको हम लोग नाम देते हैं लेंथ ऑफ टेंजेंट का। इसी पॉइंट से मैं एक नॉर्मल ड्रॉप करता हूं PN, PN इज कॉल्ड लेंथ ऑफ नॉर्मल, right? Let the perpendicular fall from here is this point, say that is T, then this MT जो उसकी इमेज बनती है इसके ऊपर MT, MT is called length of subtangent. Okay, then TN, TN is called the length of subnormal, length of subnormal. ठीक है जी, ये तो है ये बलाएं कि टेंजेंट क्या है, नॉर्मल क्या है, सब टेंजेंट क्या है, सब नॉर्मल क्या है। ठीक है, ये जो डिस्टेंस बनेगा इस टेंजेंट का एक्स एक्सिस के ऊपर जहां ये कट करेगा, आई एम नॉट सेइंग दिस इज ओरिजिन, एक्स एक्सिस पर जहां भी कट करेगा उस वो जो लेंथ बनती है आपकी, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सब, लेंथ ऑफ टेंजेंट। यहां से नॉर्मल जो आप ड्रॉ करते हो वो एक्स एक्सिस जहां जाकर के मिलता है, दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ नॉर्मल।
इसका जो यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, इसका जो इमेज इसके ऊपर गिरता है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सब नॉर्मल, इसका जो इमेज यहां पे आकर के बनता है दैट इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट। ओके, नाउ लेट दिस पॉइंट इज x नॉट y नॉट, y नॉट, दिस एंगल इज थीटा। ओके, ये लेंथ हो जाएगी y नॉट। ओके, दिस लेंथ इज y नॉट, देन y नॉट अपॉन, हमें सब टेंजेंट से मतलब है, सारे बता देता हूं क्या है, देन y नॉट अपॉन pm, y नॉट अपॉन pm इज इक्वल टू साइन थीटा। ओके जी, सो pm इज इक्वल टू y नॉट cosecant थीटा, राइट। pm क्या था, लेंथ ऑफ टेंजेंट, सो लेंथ ऑफ टेंजेंट बिकम्स y नॉट cosecant थीटा, राइट। नेक्स्ट, ये एंगल अगर थीटा लिया, ये ऑब्वियसली 90 माइनस थीटा हो जाएगा, राइट। देन y नॉट अपॉन pn, y नॉट अपॉन pn इज इक्वल टू साइन ऑफ दिस थीटा, साइन ऑफ 90 माइनस थीटा इज cos theta, so this is pn is equal to y naught secant theta, y naught secant theta, राइट जी। अब बारी आ रही है सब टेंजेंट सब नॉर्मल की, इसी ट्राइंगल में mt अपॉन या y नॉट अपॉन या mt कह दो, इन दिस ट्राइंगल mt अपॉन y नॉट इज इक्वल टू cot थीटा बेस अपॉन परपेंडिकुलर, सो mt इज इक्वल टू, mt क्या था, सब टेंजेंट, सो सब टेंजेंट इज y नॉट cot थीटा, राइट। यहां हो जाएगा y नॉट अपॉन tn या nt अपॉन y नॉट इज इक्वल टू cot ऑफ 90 माइनस थीटा मीन्स tan थीटा, सो nt इज इक्वल टू y नॉट tan थीटा, ठीक है जी, दिस इज द थिंग। नाउ लेट अस चेक, अब ये tan थीटा वगैरह निकलेंगे कहां से, you know that derivative is the slope of the tangent at the point of contact, तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax हमारे पास पैराबोला है, y square is equal to 4ax, so differentiating 2y dy by dx is equal to 4a, then dy by dx is equal to 2a upon y, अगर पॉइंट पर्टिकुलर लेकर के चल रहे हैं then that is y naught, so tan theta is equal to dy by dx at x naught y naught is equal to 2a upon y naught, ये हो जाएगा। अब वो हमें से रिलेशन किससे मांग रहा है कि सब टेंजेंट इज व्हाट, दिस y नॉट cot थीटा, y नॉट cot थीटा, cot थीटा क्या हो जाएगा यहां से, tan थीटा इज दिस स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। cot थीटा इज व्हाट, y नॉट अपॉन 2a, y नॉट अपॉन 2a, राइट जी। नेक्स्ट ऑर्डिनेट इज नथिंग बट y नॉट, कॉमा, नेक्स्ट सब नॉर्मल इज y नॉट tan थीटा, y naught tan theta, so that is y naught tan theta is 2a upon y naught, right। Now just check whether square of this is equal to multiple of this, right। एडिशन से तो नहीं आ रहा, twice of this is not equal to this plus this, AP में तो नहीं है, so next option is GP, they are in GP if y naught square is equal to y naught into y naught upon 2a into this cancels out 2a 2a cancelled out, y naught square is equal to y naught square, so they are in GP, okay ji, so the answer should be B here, ठीक है जी, answer is B। I am explaining again the concept of subtangent, ordinate, subnormal to the parabola y square is equal to 4ax। अगर ये आपके पास कोई पैराबोला है, इसके इस पॉइंट के ऊपर टेंजेंट ड्रॉप किया गया, ये टेंजेंट जहां जाकर के एक्स एक्सिस को कट करता है उस लेंथ को हम लोग कहते हैं tangent, okay। Using simple trigonometry by assuming this angle to be the theta, this comes out to be y naught cosecant theta, then pn is the length of subnormal normal, ये जो लेंथ है नॉर्मल ये आ जाती है y naught secant theta, mt is subtangent जो कि उसकी प्रोजेक्शन गिरती है, so that is y naught cot theta, tn is y naught tan theta, ये जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो है ये कहां से आएंगी, स्लोप निकाल करके, सो tan थीटा इज इक्वल टू 2a अपॉन y नॉट, राइट जी। यहां से tan थीटा आ गया, tan थीटा से बाकी चीजें हम निकाल सकते हैं, ये दिस ऑल दिस, सो इनमें रिलेशन वो मांग रहा था, सो आई पुट देम अकॉर्डिंगली, सो दिस इज द रिजल्ट, ओके, सो बी इज द आंसर।
Next question, 57th. 57th now. If from a point A, the two tangents to the parabola y square is equal to 4x are normal to the parabola y x square is equal to 4by, then वो कहता तब क्या होगा. हाँ, नॉर्मल ले लेते हैं हम लोग इसके ऊपर. ओके जी. I am explaining once again. I am reading the question again. If from a point A to the parabola, two tangents y square is equal to 4x are normal to parabola x square is equal to 4by. 4by. Okay जी. So normal is equation of normal is कोई पॉइंट इसके ऊपर हम लोग क्या ले सकते हैं, 2bt and bt square, right? So equation of normal is yt is equal to minus x. if you wish to make it, you can make it कि जी इसका डेरिवेटिव वगैरह करो, then 2x dy by dx, then dy by dx is equal to x upon 2b, that comes out to be, replace करो उनको values को, 2bt upon 2 into b cancelled out, comes out to be t. So slope comes out to be minus 1 upon t. Slope is minus 1 upon t. So equation is y minus bt square is equal to minus 1 upon t minus x upon 2 bt. So this comes out to be yt minus bt cube is equal to minus x plus 2 bt. Okay ji. So equation comes out to be y is equal to minus x upon t plus 2b plus bt square. This equation मैंने t से डिवाइड कर दिया थ्रू आउट. y bt square उधर चला जाएगा प्लस bt minus x upon t plus 2b. Now he says this line is tangent to y square is equal to 4x. It is tangent to y square is equal to 4x. इसका मतलब अगर टेंजेंट हो तो क्या होता है, c is equal to a upon m. c हमारे पास है अब सारा ये 2b plus bt square is equal to a is what 1, m is what minus 1 upon t. So this becomes 2b plus bt square is equal to minus t. Okay, means bt square plus t plus 2b is equal to 0. Now condition क्या लगाऊंगा, t is real if b square minus 4ac is greater than or equal to 0, means b square आ रहा 1 minus 4 into 2 8 हो जाएगा, 8b is greater than or equal to 0, right जी. b square, so 8b square is less than or equal to 1, b square is less than or equal to 1 upon 8, यानी कि modulus of b is less than or equal to 1 upon 2 root 2. So the answer should be B. यही आंसर है. Okay. The question was if from a point A the two tangents to the parabola y square is equal to 4x are normal to parabola. That I make, पहले normal बना दिया, right जी. Normal बना करके फिर tangent की condition लगा दी. Now it is a tangent if c is equal to m, simple condition लगाइए. So this is the result. Okay जी. Now question number 58. The circle drawn on the latest rectum of the parabola 4y square plus 25, parabola है आपके पास 4y square plus 25 is equal to 4 into y plus 4x as diameter cuts the axis of the parabola at the points. ठीक है, हमने क्या करना है, the circle drawn on the latest rectum उसका diameter हो गया of the parabola this as diameter cuts the axis of parabola at the points. Axis को कौन से points के ऊपर वो cut करता है. So let us do it.
ओके जी, 4 को उधर ले जाओ आओ। दिस इज अ पैराबोला, राइट जी। ये पैराबोला आपके पास y माइनस हाफ होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू एक्स माइनस 3/2। वर्टेक्स उसका क्या बन रहा है, मतलब कैपिटल X इज इक्वल टू x माइनस 3/2, कैपिटल Y इज इक्वल टू y माइनस हाफ, राइट। a इज इक्वल टू 1, तो फोकस क्या हुआ उसका 1 0। इसको रिप्लेस करो, कैपिटल X को 1 रखो, तो x क्या आ रहा है आपका 5/2, 5/2 कॉमा हाफ। ये हुआ जी उसका सेंटर, focus. Focus is the center of our circle now. So equation of circle is x minus 5/2 whole square plus y minus half whole square is equal to पूरे का पूरा जो लेटेस्ट रेक्टम है, लेटेस्ट रेक्टम इज व्हाट 4, पूरे का पूरा जो लेटेस्ट रेक्टम है दैट इज इट्स डायमीटर, तो रेडियस कितना हो गया 2, सो इज इक्वल टू 4। ओके, एक्सिस क्या बन रहा है इसका, एक्सिस होता क्या है इस पैराबोला का, जो y स्क्वायर इज इक्वल टू दिस थिंग है, x इज इक्वल टू y स्क्वायर इज इक्वल टू समथिंग है, y स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करूं इसको, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। ओके जी, तो x एक्सिस जो है दैट इज इट्स एक्सिस, यानी कि y इज इक्वल टू 0, तो एक्सिस इज y माइनस हाफ इज इक्वल टू 0, राइट। अब ये y इज इक्वल टू हाफ को कहां कहां कट करेगा, इसका मतलब इस चीज को 0 रिप्लेस कर देते हैं। So for points on axis of parabola, x minus 5/2 whole square is equal to 4, ये चीज तो omit हो गई। So x minus 5/2 is equal to plus minus 2, x is equal to 2 plus 5/2, x is equal to minus 2 plus 5/2, so x is equal to 9/2 and x is equal to 1/2. So the points are 9/2, 9/2, y तो हाफ ही रहेगा, ओके जी, हाफ एंड हाफ एंड हाफ, so this should be the answer. Yes, half and 9/2 and half, so A is the answer. Okay जी, I am explaining again. Question में क्या था, the circle drawn on the latest rectum of the parabola 4y square plus 25 is equal to 4 into y plus 4x as diameter cuts axis of parabola at the points. पैराबोला बनाया पूरा, राइट, उसका फोकस निकाला, फोकस निकालने के बाद वो जो फोकस है वो हमारे सर्कल का सेंटर हो जाएगा, राइट। और एक्सिस को कहां कट करेगा, एक्सिस के लिए हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाली, दोज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आर द आंसर्स। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्टी-नाइन्थ क्वेश्चन, the straight line x plus y is equal to k touches the parabola this, ये सिंपल क्वेश्चन है एकदम से, then k is equal to, उसको पुट कर दो या कंडीशन लगा दो, y is equal to x minus x square, x square ये पैराबोला है और लाइन है x plus y is equal to k। मैं यहाँ सबसे सिंपल जो रिजल्ट है वो यूज करूंगा कि इस लाइन को इसमें पुट कर दूंगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल दूंगा, इट विल बी ए टेंजेंट इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट, क्वाड्रेटिक बनेगी इफ इट्स डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट 0 हो जाएगा, इसका मतलब क्या है कि वो उसको एक ही पॉइंट के ऊपर कट कर रहा है, कट करने के बाद टच कर रहा है, सो लेट्स डू इट, y इज इक्वल टू k माइनस x, so x square minus 2x plus k is equal to 0, so it is a tangent if d is equal to 0, so b square minus 4ac is equal to 0, 4 minus 4 into k is equal to 0, so k is equal to 1, this should be the answer. Yes, the answer is C part. Okay, क्या क्वेश्चन था कि find the value of k so that this line is tangent to this, okay,
x प्लस वाई इज इक्वल टू के जो है वो इसके टेंजेंट हो जाए। तो टेंजेंट कोई भी कर्व हो, दिस रिजल्ट होल्ड्स एवरीवेयर वेदर इट इज एनी टाइप ऑफ कर्व, सर्कल है इवन देन इट होल्ड्स के जी दोनों को सॉल्व कर दो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो कर दो, डिस्क्रिमिनेंट जीरो जहां हो जाएगा वहां टेंजेंट बन जाएगा। सो मैंने वही यूनिवर्सल मेथड यहाँ पे लगाया। ओके जी, k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 60th नाउ। Sixtieth is the number of distinct normals that can be drawn from 11/4 and 1/4 to the parabola. पैराबोला है हमारे पास y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। कितने नॉर्मल कहता ड्रॉ हो सकते हैं इस पॉइंट से? अगर पॉइंट उसके अंदर लाई कर रहा है, आई टोल्ड यू अर्लियर कि अगर अंदर लाई कर रहा है तो वहां से कितने नॉर्मल हम ड्रॉप कर सकते हैं? वहां पे 3। सो लेट अस चेक वेदर इट इज इंटीरियर और नॉट। y स्क्वायर माइनस 4x is equal to 0. The point is 11/4 and 1/4, right? So 1/16 minus 11, ये तो less than 0 आ रहा है, so point lies inside मतलब इस तरह की सिचुएशन हो जाएगी कहीं, तो यहां से कितने नॉर्मल? एक नॉर्मल ये, एक नॉर्मल ये, और एक नॉर्मल समवेयर हियर। लाइक दिस, मतलब इन ऑल अंदर अगर पॉइंट है तो 3 नॉर्मल्स हो सकते हैं। सो पॉइंट लाइज इनसाइड, सो 3 नॉर्मल्स कैन बी ड्रॉन। ओके, सो द आंसर शुड बी ए। ए इज द आंसर। ओके, वो कह रहा था नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट नॉर्मल्स दैट कैन बी ड्रॉन फ्रॉम 11/4 एंड 1/4 टू द पैराबोला y इज इक्वल टू 4x। हमने पॉइंट चेक करना था कि वो इनसाइड है कि आउटसाइड है, तो अगर इनसाइड है तो वहां से हम लोग 3 नॉर्मल ड्रॉप कर सकते हैं। सो 3 इज द आंसर। ओके जी।